السلام علیکم. نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. من یارم قسط نمبر 6 میرا بھایات. ناول لیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ ناول اب یوٹیوب پر فی الحال جو ہے رائٹر کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے آگے نہیں جائے گا کیونکہ اس کی ای بک اویلیبل ہے اور وہ آپ خرید سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وجوہات اس کی بنا اجازت پبلش کرنا اور اس وجہ سے تھوڑے سی مشکلات ہو رہی ہیں، تو اس لیے رائٹر نے اس کو ایسے نہیں دیا. جس کو ای بک چاہیے ہو اس کے بارے میں انفارمیشن آپ لوگوں کو اسی ناول کے دوران میں دے دوں گی اور آپ لوگ پھر دیکھ لیجئے گا. مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا جس نے خریدنی ہو، آگے میں اس کو آگے نمبر دے سکتی ہوں یا ای میل ایڈریس دے سکتی ہوں یا انسٹا اکاؤنٹ دے دوں گی، تو آپ مزید وہاں سے پھر رابطہ کر کے تو اس کو کر سکتے ہیں جاری. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 انگلیوں کو باری باری پکڑتے ہوئے اسے گنتی سنا رہی تھی. اپنے حصار میں لیے بیٹھا وہ لبوں پر دھیمی مسکان سجائے اس کا پرجوش سا انداز دیکھ رہا تھا. 10 اور بس. 10 تک گنتی سنا کر وہ چہکتے ہوئے سیدھی ہوئی. ویری گڈ. اب یہ بتاؤ ابھی اس گھر میں ہم کتنے لوگ ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شارب نے نرمی سے پوچھا تو مومل نے آس پاس آنکھیں گھمائی. کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی جہاں یقیناً فاریہ کام میں لگی ہوئی تھی. ایک میں ہوں اور دوسری فاریہ ہے، مومل نے سر دھنتے ہوئے کہا. اور میں کہاں گیا؟ شارب نے مصنوعی خفگی سے بولا. تو بھی یہی ہے، مومل نے اطمینان سے کہا. تو پھر دوبارہ گنو شاباش، شارب نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی گرنے لگی. 2 گھر میں 2 لوگ ہیں، مومل نے مکمل اطمینان سے جواب دیا. سوری. شارب نے کچھ عاجزانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. 2 نہیں مومل، ہم 3 ہیں، شارب نے اسے ڈپٹتے والے انداز میں بتایا. 3 کیسے؟ ہم 2 ہیں، مومل نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا. آواز مدھم تھی، حالانکہ اس کا دل اس پر چیخ کر اپنی بات کہنے کو چاہ رہا تھا، لیکن شارب کے لحاظ میں وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی. اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک تم اور دوسرا میں اور تیسری. اپنے دانس میں اسے جواب دے رہا تھا جب اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے ہو کر بولتی وہ اسے ٹوک گئی. تو دوسرا نہیں ہے شارب، تو اور میں ایک ہیں. اس کی سب آنکھوں میں دیکھتی وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں چیخی تھی. اس کے جواز پر شارب نے کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا. وہ کم عقل بلکہ شاید نہیں، عقل سے خالی ایک ایب نارمل لڑکی کس قدر خاص بات کر گئی تھی. لب بھینچتا وہ اسے نگاہیں چرا گیا. اب تو پوچھ کیسے؟ اسے ہوش دلانے والے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئے مسکاتے لہجے میں پوچھ رہی تھی. کیسے؟ شارب نے آہستگی سے پوچھا. کیونکہ ہم دوست ہیں. تو پھر تو اور میں ایک ہی ہوئے نا؟ ایک ہم اور دوسری فاریہ. گھر میں 2 لوگ ہیں. مومل نے بڑی آسانی سے اسے سمجھایا تھا اور وہ جو حساب سمجھانے بیٹھا تھا، اب انجانے میں وہ لڑکی بڑی لاپرواہی سے شارب آفاق کو خود سے محبت کا پہلا سبق پڑھا رہی تھی. حساب کے اصولوں میں دوستی نہیں گنتے مومل، ورنہ جواب ہمیشہ غلط آتا ہے. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شارب نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا. پھر مجھے نہ اصول سکھا شارب، جس میں تو اور میں الگ الگ گنتی کیے جائے. اداس ہوتی وہ رونی صورت بنا کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرانا پڑا. یہ تو دنیاوی اصول ہے، سیکھے بنا گزارا مشکل ہو جائے گا. اس کا گال سہلاتے ہوئے شارب نے کہا. مومل کی آنکھیں بھیگنے لگیں. میری دنیا تو تیری پر سے تو پری سے شروع ہو کر تجھ پر ختم ہوتی ہے شارب، اور اس دنیا میں تم دونوں کے علاوہ مومل کا کوئی تیسرا اصول نہیں چاہیے. اس کی جانب دیکھتے وہ بھیگے لہجے میں بولتی ہوئی کہیں سے بھی وہ مومل نہیں لگ رہی تھی جسے وہ بدنام گلیوں میں روشن کوٹھے کی تاریکیوں سے لے کر آیا تھا. شارب خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. زندگی ایسے نہیں گزرے گی مومی. اس کی نم آنکھوں کو کے کونے سہلاتا وہ سنجیدگی سے بولا تو مومن نے فوراً نفی میں سر ہلایا. تو میرے ساتھ رہے گا نا ہمیشہ؟ تو گزرے گی زندگی. دیکھنا تو جو کہتا ہے مومل مانتی ہے نا؟ ہیں بتا، مانتی ہے نا؟ اس کی ٹھوڑی اونچی کرتی وہ بھیگی پل کے جھپکتے بولی. تو نے کہا اونچی اونچی نہیں رونا. میں روتی ہوں اب؟ اس کی جانب دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی. چپل بھی دروازے کے باہر اتارتی ہے مومل، گالیاں بھی نہیں دیتے. تیرے لائق فراق بھی پہنتی ہے، زور سے نہ ہنستی ہے نہ روتی ہے، اور رنگوں کے نام بھی سیکھے، پھلوں کے بھی سیکھے. اب میں نے یہ گنتی بھی سیکھ لی، لیکن یہ تجھے اور مجھے. تیز رفتاری سے
بولتے ہوئے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لیکن شارب اس کی خاموش بہتی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ یہ گنتی تجھے اور مجھے الگ کرتی ہے تو وہ مومل یہ گنتی بھول جائے گی۔ بھول جائے گی نا شارب؟ اگر بھول جائے گی تو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ اس کی جانب دیکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شارب اس کی دیوانگی پر کچھ حیران پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلاتے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا تو وہ روتے روتے مسکرائی۔ تو گیا تو مومل مر جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ اس کے گلے لگتے وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ اس کی دھمکی پر شارب کا دل بے اختیاری میں دھڑکا۔ بھلا وہ کب تک تعمر اس کے ساتھ رہنے والا تھا؟ یا شاید نہیں، ہوش و حواس سنبھال لینے کے بعد وہ خود سے 13 سال بڑے اس مرد کو چھوڑ دینے والی تھی جو اسے شعور کی جانب لانے کی کوششوں میں بچہ بنا رہتا تھا۔ ہمیں دریافت کرنے سے ہمیں تسخیر کرنے تک بہت ہے مرحلے باقی، ہمیں زنجیر کرنے تک۔ ہمارے ہجر کے قصے سمیٹو گے تو لکھو گے، ہزاروں بار سوچو گے، ہمیں تحریر کرنے تک۔ ہمارا دل ہے پیمانہ، سو پیمانہ تو چھلکے گا، چلو 2 گھونٹ تم بھر لو، ہمیں تاثیر کرنے تک۔ پرارے رنگ چھوڑو آنکھ کے، ایک آنکھ ہی کافی ہے، محبت سے چشم بھر لو، ہمیں تصویر کرنے تک۔ ہنر تکمیل سے پہلے مصور بھی چھپاتا ہے، ذرا تم بھی چھپا کے رکھو، ہمیں تعمیر کرنے تک۔ وہ ہم کو روز لوٹتے ہیں اداؤں سے، بہانوں سے، خدا رکھے لٹیروں کو، ہمیں فقیر کرنے تک۔ بے تاثر نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گھورتی وہ آس پاس بجتے ساز اور دھن سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ سرد لباس میں ملبوس وہ مرجھائی ہوئی کلی لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ آپی، اگر آپ تھوڑا سا مسکرا لیں گی تو آپ کا کچھ چلا تو نہیں جائے گا؟ اسے ٹھوکا مارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی اینا نے دبی دبی سی آواز میں سرگوشی کی، لیکن انا پر مطلق اثر نہ ہوا۔ نوین ڈھول کی سنبھالے بیٹھی لہک لہک کر گانے گا رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی آواز میں شامل ہوتی مہم آپی کے بیٹے کے رونے کی آواز الگ ہی سر پیدا کر رہی تھی۔ نویہ تالیاں پیٹتی کافی حد تک نوین کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ خواتین مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف نظر آ رہی تھیں۔ آج انا کو 3 دن کے لیے مایوں بٹھایا جا رہا تھا۔ تیسرے دن کے آخر میں اس کی اور سہاگ اجود کی مشترکہ مہندی تھی۔ ان دونوں کی مہندی سے 1 دن پہلے شارب اور رامین کی مشترکہ مہندی تھی۔ کسی نے مار کر بٹھایا ہے کیا؟ اس کے گھٹنے کے قریب ہی گدی پر بیٹھتا رحم انا کو چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ انا نے اس بار پہلے آئینہ اور پھر ارحم کو دیکھا۔ تم دونوں کیوں میرا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو؟ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی وہ مدھم آواز میں بولی۔ انداز سخت تھا۔ لا حول ولا قوت، توبہ کرے یار، پوسٹ مارٹم تو لاش کا کیا جاتا ہے، اب تو خیر سے ابھی حیات ہے۔ ارحم نے بڑی سنجیدگی سے مذاق کیا تھا۔ انا نے غصے سے ناک چڑھائی۔ غور سے دیکھو، میں بھی جیتی جاگتی لاش ہی ہوں۔ انا نے کافی جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو غور سے دیکھوں گا تو زہاب بھائی مجھے ہینڈسم ترین کنوارے لڑکے کو ایک حقیقی لاش میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر میرا بچپن تو خواب کا خواب میرا بھی میرے ساتھ ہی فوت ہو جائے گا۔ انا سے زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ کرتا وہ اپنے مزاج کے برعکس کافی مسخرے پن سے بولا تھا۔ کون سا خواب؟ آئینہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑا ہو کر باپ بننے کا خواب۔ معصوم سی شکل بناتا وہ کافی سنجیدگی سے بولا تو بزار بیٹھی انا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی شرم حیا کی نام چیز ہے تم میں، یا موبائل کے ساتھ وہ بھی بیچ کھائی ہے؟ اسے 2 دن پہلے فروخت کیے گئے موبائل کا حوالہ دیتی انا نے اس کا کان کھینچتے پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ کیا آپی، کوئی انوکھا خواب تو نہیں دیکھا میں نے؟ چلیں شادی نہ صحیح، تایا ابو سے کہہ کر ایک چنی منی سی منگنی ہی کروا دیں میری۔ انا کے ساتھ بیٹھی آئینہ کو دیکھتا وہ انا سے کہہ رہا تھا۔ ہاں ہاں منگنی، بہتر تم غور سے آپی کو ہی دیکھ دو، تمہارا فوت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اسے گھورتی آئینہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں، اور پھر سب سے زیادہ تم ہی روگی۔ انا کی گرفت سے اپنا کان چھڑواتا وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ شرم کر لو، کیا اور پھول بکے جا رہے ہو تم دونوں؟ انا نے دونوں کو ڈپٹا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ شروعات اسی گدھے نے کی ہے۔ آئینہ نے فوراً اپنا دامن بچانا۔ یہ گدھا کسے کہا تم نے؟ وہ فوراً تپا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، شمشیر گاہ میں ایک برانڈڈ گدھا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ آئینہ نے جلتی پر مزید تیل چھڑکا۔ ہاں، اور تم تو جیسے عقل کی ملکہ ہو نا، گدھی کہیں گئی۔ اس کے دوپٹے کا کونا کھینچتا وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ انا نے تنگ آ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ان پر گرجی۔ ایسے تو مت کہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ آئینہ نے روحنی صورت بنا کر اسے لپٹتے ہوئے کہا۔
कभी इतने प्यार से तुम मुझे भी मनाओ ना तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी चाकरी करके गुजार दे ये गधा। सीने पर हाथ रख के सर को ज़रा सा खम देते हुए वो गैर संजीदगी से बोला तो आईना ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा, जबकि अना धीरे से खिलखिला दी। तोबा, क्या मरासीपन बखेरे हो, दफ़ा हो जाओ। और हम अपनी हंसी दबाते हुए अना ने कहा तो वो अपने बालों में हाथ चलाते हुए उठ खड़ा हुआ। एक तो उल्टी सीधी बातें करके हंसा रहा हूँ आपको और आप मुझे ही मेरासी कह रही हैं। भूलूंगा नहीं आपका ये जुल्म, अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए मसनूई नाराज़गी से बोला। हाँ, और मुझे ख्वाम की गधी बना दिया बीच में। आईना ने लबाव से शिकवा फूट पड़ा। और तुमने जो मुझे ब्रांडेड गधे का खिताब दिया, इसका क्या? वो जाते जाते उसे याद दहानी करवाना नहीं भूला था। हाँ, तो शुरुआत तुमने ही की थी ना, खड़ूस इंसान। आईना फिर से मैदान में कूदने को तैयार थी। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर दे। अना ने गहरा सांस लेते हुए दहाई दी। वो दोनों हनूस बहस में मशगूल थे। इससे पहले कि अना अपने हवास खो गवाती, आयला चची ने बर वक्त एंट्री दी थी। तुम दोनों क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? चलो हटो बच्ची के पास से। जुहाक आ गया, वो रस्म करेगा। आईना और अहरम को लड़ते देखकर उन्होंने इन दोनों को लताड़ा, जबकि इसके नए फरमान पर अना के रहे सहे ओसान भी खता हो गए। मामी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। अपनी जगह से उठती वो जल्दी से बोली। अरे ऐसे कैसे, ये तो रस्म है आना। उसे वापस बिठाते आयला और चची ने संजीदगी से कहा। अना ने तिरछी निगाहों से एक जानिब खड़े सुहाग को देखा। आम दिनों के बरअक्स ऑफ वाइट शलवार सूट पहने वो कंधों पर गर्म शाल लपेटे नाजिया ताई के करीब खड़ा था। अना की जानिब इसकी चौड़ी पूछ थी। आयला चची की पुकार पर इसकी जानिब पलटा तो इसकी नाक पर धरा मोटा सा चश्मा देखकर हमेशा की तरह अना का दिल बुरा हो गया। फजूल इंसान, नज़रें झुकाती वो बड़बड़ाई। इसकी हालत के बरक्स अरहम और आईना की लड़ाई अपने अरूज पर थी। तुम्हें तो मैं देख लूँगा छिपकली। हाँ, और तुम क्या हो, सूखे चूहे। आईना की ज़बान दराजी अपनी मिसाल आप थी। आईना, क्या बकवास किए जा रही हो? तमीज़ से करो, बात करो, भाई है तुम्हारा। वहाँ आती निमरा बेगम ने बेटी को घिरका। लफ्ज़ भाई पर अरहम ने बमुश्किल थूक निकला, जबकि आईना ने उसे बुरी तरह ज़बान चढ़ाई। भाई, मुंह बसूर कर कहती वो दुपट्टा संभालती वहाँ से हट गई। अरहम ने नरम निगाहों से उसकी नाजुक कमर पर लहराती करली बाल देखे। पीले और लाइट ऑरेंज के लहंगे के सूट में आम दिनों की निस्बत दिलकश लग रही थी। शौक से सीटी बजाता वो भी वहाँ से पलट गया। वो मुस्कुराकर नाजिया बेगम की किसी बात का जवाब देता उसी जानिब आ गया। चलो आओ लड़कियों, सुहाग रस्म कर रहा है। आयला चची ने पुरजोश से अंदाज में ढोलकी के साथ जोर आजमाई करती नवीन समेत बाकियों को भी पुकारा, तो वो सब गाना बजाना छोड़ छाड़ कर इधर ही आ गई, जहाँ वो एक सजी सजाई मसनद पर बैठी उजड़े हुए बाग का सा मंजर पेश कर रही थी। अपने गिर्द घेरा तंग होते देखकर वो कुछ झिझक सा गया। चलो भी शुरू करो, पहले अपनी बेगम को उपटन लगाओ। निमरा बेगम ने सुहाग को हदायत दी तो वो हिम्मत मजतमा करते इसके पहलू में बैठ गया। लगा दूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी? अना के सामने पड़े छोटे से मेज़ पर रखे लवाजमात की तरफ झुकते उसने सरगोशियाना पूछा। अना ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घेरा, जिसके तेल में चिपड़े बालों ने आज फिर इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। वो लब भेजते हुए आहिस्तगी से सरस बात में हिला गई। सुहाग ने एक सब्ज़ पत्ते पर उपटन लेकर बारी बारी इसके दोनों हाथों की पुष्ट पर लगाई थी। अजुद, चेहरे पर भी लगाओ ना। माँ, हमने अपने भाई को छेड़ा था जो औरतों के नरखे में अपनी इस रस्म पर कदरे झिझक रहा था। इसने तकाजे पर उतने आजसाना निगाहों से बहन की तरफ देखा। चेहरे पर जगह ही नहीं बची तो कहाँ से लगाऊं? बारी बारी इन सब की तरफ देखता हुआ वो बेचारा मध्यम लहजे में बोला। अना के दोनों गाल और पेशानी पहले ही उपटन से जर्द हो रहे थे। लो जी, तुम्हें अना की इतनी बड़ी नाक नज़र नहीं आती? लगा दो वहीं। यह मशवरा देने वाली नबिया थी। सुहाग ने इतनी बड़ी नाक कहने पर बगौर अना की जानिब देखा, फिर नबिया आपी की तरफ पलटा। इतनी बड़ी भी नहीं है। उसने बड़ी सादगी से इन्हें बावर करवाया तो इस तरफ तारी पर इनका मुश्तरका कहका पड़ा। अना खफीफ सी हो गई। अब लगा भी दो या मज़ीद तमाशा लगाने का इरादा है? वो धीमी आवाज़ में खुराई तो सुहाग किसकी जानिब मतवज्जो हुआ। लगा ही रहा हूँ, नरमी से कहते हुए उसने अना की नाक पर उपटन लगा दिया। अरे जा कहाँ रहे हो, तेल तो लगाओ इसके बालों में। वो हाथ साफ करता उठने लगा जब उसके कंधे पर दबाव डालते हुए आयला चची ने कहा। तेल आप खुद ही लगा ले, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे चची। सुहाग ने चांद छुड़वाने की पहली कोशिश की। हम तो लगा चुके हैं मियाँ, अब तुम्हारी बारी है। आयला चची ने उसे साफ झंडी दिखाई। तो प्लेट से मत लेना भाई, अपने बालों में से हाथ चलाकर वहीं आप ही के सर में फेर दे, तेल भी लग जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। नवीन ने अपने तय बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। इस बार कहकों का तूफान उमड़ आया। वो खज्जल सा होता मुस्कुरा दिया, जबकि अना की हालत इन मुज़ाहिरा फ़िक्रों पर ख़राब होने लगी। आंखें आप भर आने लगी। वो आज थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था गलती से। सुहाग ने मुस्कुराते हुए सफाई दी। अना का दिल किया इसका मुंह तोड़कर वहाँ से कहीं और भाग जाए। ये गलती तो महीने में 30 बार करते हो।
आयला चची ने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फ़ौरन जवाब दिया था। अना की बर्दाश्त खत्म हुई और वह एक झटके से वहाँ से उठी। रस्म हो गई हो तो मैं जाऊँ मामी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। निब्रा बेगम की तरफ देखती हुई वो अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करती भराई हुई आवाज़ में बोली। अभी कहाँ, मुंह मीठा भी नहीं करवाया, नवीन ने दहाई दी। नहीं बस, पूरी हो गई हैं सब रस्में, थक गई है मेरी बच्ची, अब इसे आराम करने दो। उसे खुद से लगाते निम्रा बेगम ने नरमी से कहकर उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। जानवी बहन को कमरे में छोड़ा। निम्रा बेगम ने नवीन को मुखातिब किया तो वो मुंह बसूरती वहाँ से उठ गई। आया भी, अना का दुपट्टा संभालने में उसकी मदद करती नवीन बेजारी से गोया हुई। वो अपने आंसू जब्त करती अपने कमरे में चली आई। पीछे निम्रा बेगम आईना को पुकारती फिर रही थी। ये आईना कहाँ जा सोई है, वो नबिया से दराफ्त कर रही थी। इस बार ढोलक महाव ने संभाली थी। ज़ुहाक ठंडी सांस भरता अपने कमरे में चला गया। कुत्ते की मौत मारूंगा इस हरामखोर को। इतना पैसा वापस इन्हीं फ़कीरों को मिल गया था जिनसे मैंने लूटा था, और 4 साल की मेहनत भी ज़ाया चली गई। गुस्से से चिल्लाता चिंघाड़ता पीरज़ादा शहाबुद्दीन जतोई अपने सामने रखी शीशे की मेज़ उलट चुका था। इसके 7वें नंबर वाली जोजा दुनिया की नज़र में इसकी तीसरी और आखिरी जोजा थी। सोफे से उठकर इसकी जानिब आ गई। पीर साहब, इतना गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और आपको पता है ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाती है। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखती वो लहजे में परेशानी समोने की भरपूर कोशिश कर रही थी। धीमी आवाज़ में बोली। इसके यूं लाड जताने पर शहाबुद्दीन जतोई ने काटदार निगाहों से इसका खूबसूरत चेहरा, फिर अगले ही पल इसके सिल्की बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। इस कमाल को तेरे कहने पर ही मैंने अपने दाहिने बाजू की जगह दी थी, और नतीजे में वो सुअर मेरी ही गर्दन काट गया। अब मेरे 2.5 करोड़ की भरपाई कौन करेगा? तू करेगी सारी। इसके सर को झटका देता वो इस पर धड़ा। नगीन नामी इस लड़की की रंगत खौफ से जर्द पड़ने लगी। मुझे क्या मालूम था कि वो बीच में तार में आपको धोखा दे जाएगा। और पीर साहब, आप तो माशाल्लाह से खुद समझदार हैं। आपने भी तो उसे काफ़ी मर्तबा परखा था। अपने बाल उसकी फुलादी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती वो मिनमिनाई। नगीन को अपनी मौत नज़र आने लगी। यही सच था कि वो और मंसूर कमाल बचपन से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। 5 साल पहले मंसूर के कहने पर वो बड़ी चालाकी से शहाबुद्दीन जतोई के करीब हो गई थी, और फिर कुछ अरसे में मंसूर साहब को भी जे की फील्ड का हिस्सा बना दिया था। गुजरते वक्त के साथ साथ वो दोनों ही शहाब के करीब से करीब तर होते चले गए। नतीजतन 2 साल कबल ही शहाबुद्दीन जतोई ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली 7वीं औरत से निकाह कर लिया। ये नगीन पर उनकी अनायत ही थी कि उसने दुनिया के सामने उसे अपनी तीसरी बीवी के तौर पर मुतारफ़ करवाया था, वगरना इसकी कुछ गुमनाम बीवियां भी थीं जिन्हें शायद बरोज़ क़यामत ही पहचान मिलने वाली थी। साली, तू बड़ी चालाक है। यूं ही मीठी छुरियां चलाकर पहले तूने मेरा दिल काट डाला, और अब मेरी जेब। वो मंसूर कमाल तेरा ही साथी है, तुझे इसका ठिकाना मालूम होगा। भोंक, वरना तेरी ज़बान गद्दी से खींच दूंगा। उसके बाल छोड़कर गर्दन जकड़ता वो घुराया। नगीन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बमुश्किल अपनी सफाई दी। आपको धोखा देने से बेहतर तो मौत है पीर साहब। मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, मेरा यकीन कीजिए। वो रोते हुए बोली थी। अब वो उसे क्या बताती कि वो मंसूर की साथी तो थी, लेकिन इस मामले में मंसूर कमाल ने उसे भी धोखा दिया था। 500 करोड़ की चोरी का वो तन तनहा जिम्मेदार था। झूठ बोलती है हराफा, उसे ज़मीन पर फेंकते हुए वो चिल्लाया। बास, हंटर आपसे मिलने आया। अपने आदमी के इतला देने पर वह ज़मीन पर गिरी नगीन को ठोकर मारते मारते रुका। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नगीन की जानिब से मुंह फेरता वो चिल्लाया। वह मिनटों में वहाँ से 9-11 हुई थी। इजाज़त मिलने पर वो मजबूत चाल चलता इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी देखने के काबिल से बारिश में ज़मीन पर टूटा हुआ कांच और मेज़ की गिरी पड़ी अशया बदनुमा धब्बा लग रही थी। बड़ी तमन्ना थी इस खास को कि कभी जे का रुख दीदार नसीब हो। पुरसकून अंदाज में सोफे पर जाकर बैठता वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। सिगरेट सुलगाते हुए शहाबुद्दीन जतोई ने सर इस बात में हिलाया। हंटर की जानिब उसकी पुश्त थी। मेरा दीदार करने से पहले ही तुम्हारा बैठ जाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। उसकी तरफ पुश्त किए जे ठंडे ठार लहजे में बोला तो हंटर ने खड़ा होने की बजाय सोफे की पुश्त से टेक लगाते टांग पर टांग चढ़ा ली। तहनीज़ में खड़े जे के दोनों आदमियों ने काफ़ी गैरत से उसकी जुर्रत का यह मुजाहिरा देखा। आपने मुझे इस मुलाकात का शर्फ बख्शा, इसका मतलब मैं यही अक्स करूँगा कि आप मेरी मदावरत भी करेंगे। अब इतनी तो अक्ल आप में होगी कि मेहमान को खड़ा रखना आदाब मेज़बानी के ख़िलाफ़ है। जीन्स की जेब से सिगरेट निकालता वो मुकम्मल एतमाद से बोला तो इसकी हाजिर जवाबी पर वह सर इस बात में हिलाता हंटर की जानिब घूमा था। नौजवान, तुम्हारे काम की तरह तुम्हारी ज़बान भी तेज़ है। दानी आबरू उचकाते हुए जय ने दाद देते हुए लहजे में कहा। लाइटर होगा? उसकी बात नज़रअंदाज करता वह संजीदगी से पूछ रहा था।
जय ने हाथ में पकड़ा लाइटर उसकी तरफ उछाला, जिसे हंटर ने बर वक्त कैच कर लिया। काम में महारत और ज़बान की जसारत दोनों का इस्तेमाल मैं बहुत सोच समझ कर करता हूँ। सिगरेट को लाइटर का शोला दिखाते हुए हंटर ने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी जहानत ने मुझे तुमसे मिलने पर मजबूर किया था, और अब तुम्हारा एतमाद मुझे तुम्हें अपने साथ रखने पर मजबूर कर रहा है। इसका बेतासुर चेहरा देखते हुए जय ने संजीदगी से बोला तो हंटर धीरे से हंसा। मैं आपके बगैर भी आपके साथ ही था, यह आप बखूबी जानते। सिगरेट का गहरा कष्ट लगाते हुए हंटर ने मध्यम लहजे में कहा तो इस बार जय भी हंसा था। नौजवान, तुम्हारी ज़बान किसी हथियार से कम नहीं, यह हमारे बहुत काम आएगी, परसकून लहजे में कहते हुए जय खुद भी सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ा रहा था। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? टेक छोड़कर सीधा होते हंटर ने संजीदगी से पूछा। कंपनी वाला मामला तो तुम्हारे सामने ही है। इस सिलसिले में मंसूर कमाल से मेरा इंतकाम बाकी है। रही बात तुम्हारी, तो तुम कल से पीरज़ादा हाउस की मैनेजमेंट सीट संभालोगे। ये चोरी डकैती का काम अपने किसी मातहत को दे दो, तुम्हारे लिए और बहुत से काम हैं। हंटर को आगाह करते हुए इसकी आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। उसके पुरसकून चेहरे के बरक्स इसकी आंखों में तशवीश हलकूरे ले रही थी, और हंटर इस तशवीश को बखूबी समझता था। हंटर ने धीरे से सर इस बात में हिला दिया। अब जय उसे पीरज़ादा हाउस के अंदरूनी मामलात से आगाह कर रहा था। बेड पर औंधे मुंह लेटते हुए शारद ने आंखें मूंद लीं। उसके असाब शदीद थकावट का शिकार हो रहे थे। रामीन की शोखियाँ खिलखिलाहटें इसकी याददाश्त के पर्दे पर लहराती इसके थकनज़दा दिमाग को सुकून बख्श रही थी। बाजुओं में तकिया दबोचे वो नींद की वादियों में उतरने का कि एकदम भीगी नस्वानी आवाज़ इसकी समातों में उतरी। तो क्या तू मोमल मर जाएगी? तू गया तो मोमल मर जाएगी, ये याद रखना। वो नींद में चौंक गया। इसके जिस्म को एक झटका सा लगा। तकिया सर के नीचे रखते वो सीधा होकर लेट गया। नींद से फिर आंखें खोलते उसने छत को घूरा था। उसे आज भी कोठे की चारदीवारी में अपने और रीमा बाई के माबैन गुफ्तगू याद आई। मैं अपने सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात वहीं शमशीर गाह की हदूद में छेड़ आई हूँ शारद चौधरी। रीमा बाई ना तुम्हें जानती है और ना तुम्हारे और अपने माबैन किसी रिश्ते को मानती है। शारद के तारफ़ करवाने पर रीमा बाई ने बड़ी सरमोहरी से इसके वजूद को झुटलाया था। तुम हर रिश्ते से इनकार कर सकती हो, लेकिन वजाहत चाचू और इसकी बेटी के दरमियान खूनी रिश्ते की नफ़ी नहीं कर सकती मोहतरमा। शारद ने बिना तमीज़ का मुजाहिरा किया उसे हकीकत का आईना दिखाया था। निगाहें इस पर बेड पर बैठी मोमल ही की जानिब थी, जो आंखों में इश्तियाक समय सौरभ की ही जानिब देख रही थी। मैं इस मौज़ी पर कोई बहस नहीं चाहती। मेरे सामने यह हक़ाइक़ पेश मत करो जिन्हें मैं कभी नहीं मानूंगी। रीमा बाई ने तल्ख़ तरीन लहजे में उसे जवाब दिया था। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया। मोमल हमारा खून है, इसे हमारे हवाले करो, और ये जो तुमसे हमारा बुनियादी तकाजा है। पुष्ट पर हाथ बांधते हुए शारद ने मुकम्मल संजीदगी से कहा था। तुम्हारे तकाज़ों को मेरी चूती भी अहमियत नहीं देगी चौधरी साहब। शराफत के दायरे में यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले बहुत से हाथ इस कोठे के गिर्द पहरा दे रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा और तुम्हारे चाचू समेत बाहर सड़क पर गिरे हुए नजर आओगे। शहादत की उंगली उठाकर उसे तंबीह करती वो चिल्लाई थी। इस बदतरीन धमकी पर शारद का खून खौल उठा। अगर तुम मेरी माँ का खून न होती तो इस्तेदा दलारी के मुसहरे पर मैं तुम जैसी औरत का वो हशर करता कि तुम तमाम उम्र याद रखती रीमा बाई। पुष्ट पर बंधे हाथों की मुठ्ठियाँ भींचता वो हुर्राया था। इन दोनों की बहस से आजिज़ाती मोमल बेड से नीचे उतर आई। छोटे छोटे कदम उठाती वो शारद और रीमा बाई के दरमियान में आई थी और उचक कर शारद की आंखों में झांका। मोमल, तुम वहाँ जाकर बैठो। उसे पीछे करती रीमा बाई इस पर गरजी थी। परी, ये ऐसी रोशनी तेरी आंखों में तो नहीं है। रीमा बाई के हुक्म को नज़रअंदाज करती वो शारद की आंखों की तरफ इशारा करते बोली थी। बकवास बंद करो और वहाँ बैठो। उसे पीछे करती वो घुर्राई। इसे पीछे मत करो, ये मेरे साथ जाएगी। मोमल के किलाई जकड़ते वो सर्द महरी से गोया हुआ था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने आदमियों को बुलाऊं? मोमल को दूसरा हाथ पकड़ते हुए वो गुस्से से चिल्लाई। तो किस जंजीर ने रोक रखा है तुम्हें? बुलाओ अपने आदमी को और देख लो कि कौन मुझे यहाँ से 1 इंच भी हिलाने की कुव्वत रखता है। नफरत से रीमा बाई की तरफ देखता वो धाड़ा था। रीमा बाई की सुर्ख आंखें भीगने लगी। शारद को इसकी आंखों में पसपा होती रुमैसा चौधरी नजर आई थी। मेरा हाथ छोड़ो बाबू, मोमल दबी दबी सी आवाज़ में चिल्लाई तो शारद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। अब मैं पुलिस और निकाह नामे की कॉपी के साथ आऊँगा, जिसके ज़रिए मोमल मेरी मनकूहा साबित होगी। फिर देखता हूँ तुम कैसे इसे यहाँ रखती हो। आहिस्तगी से मोमल का हाथ छोड़ता वैसे चैलेंज देने वाले अंदाज में बोला तो रीमा बाई की आंखों से आंसू बह निकले। मोमल को अपनी जानिब खींचते हुए उसने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया।
मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द आऊँगा, संजीदगी से कहते शारब जाने के लिए पलटा था। रीमा बाई ने भीगी आंखों से मोमल का बेर्राया चेहरा देखा। एक लम्हा लगा था उसे फैसला करने में। नकली की बजाय अगर तुम इसे असली मनकूहा बना लो तो मेरी तरफ से लेकर जा सकते हो तुम उसे। रीमा बाई की लहरती हुई आवाज़ ने शारब के कदम रोक दिए थे। खुद को कंपोज करता वो इसकी जानिब पलटा था, जिसका चेहरा इस पल आंसुओं से भीग रहा था। शारब को इस पल इस तवाइफ में एक माँ की झलक नजर आई थी। मुझे मंजूर है, उसने बिना सोचे रीमा बाई को फ़ौरन जवाब दिया था। लम्हों का खेल था और सब बदलता चला गया। और अब वो वक्त था कि जिसका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए शारब ने खुद को पेश कर दिया था और इसके मुस्तकबिल में शामिल हो जाना चाहती थी। वो बदल रही थी और अपनी फितरत के बरक्स वो भी काफ़ी हद तक बदल गया था, लेकिन इसका दिल तो रामीन के ताम पर ही धड़कता था। उसकी सब्ज़ आँखें जिनकी रोशनी में छोटी सी लड़की को भाती थी, वो रोशनी रामीन के दम से ही तो इन आँखों में आबाद थी। इनका मुस्तकबिल तो रामीन थी, सिर्फ रामीन। मोमल के लिए वो कभी भी इस रिश्ते के हवाले से नहीं सोच सकता था जो इन दोनों के मबाइन कायम हो गया था। एक ठंडी सांस भरते वो आंखें मूंद गया, लेकिन नींद इस बार आंखों से कोसों दूर थी। रात की तारीकी में आज फिर एक भारी वजूद ने शमशेरगाह की दीवार फलंगी थी। ब्लू कोट के बटन आज खुले हुए थे, जिसमें से सीने से चिपकी वाइट टी शर्ट नज़र आ रही थी। नीचे झुकता वो आसपास देखता बड़ी होशियारी से। इसी रास्ते पर महवे सफ़र था जहाँ आज से पहले उस रात हुआ था। अना के कमरे की बालकनी वाली साइड पर आकर वह बड़ी महारत से तख्त पर चढ़ने लगा। 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर वो इसके कमरे की बालकनी में कूद गया। हंटर ने चेहरे पर पहना ब्लू मास्क ठीक किया और कमरे में दाखिल हो गया। क्योंकि आज बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद वो आज उसे बंद करना भूल गई थी। अंदर आते ही उसकी पहली निगाह बेड पर महवे इस तरह इस माजबीन पर पड़ी थी जिसकी याद उसे वहाँ तक खींच लाई थी। कोट के बटन बंद करता वो इसकी तरफ आ गया। नीम तारीकी में बेड का मंजर वाज़ेह था, जहाँ वो माइयों के सर्द लिबास में मलबूस गठरी बनी लेती हुई थी। कंबल बेतरतीबी से इस पर पड़ा हुआ था। इसके कमरे में रची उपटन फूलों की महक ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आंखें खोलो, उसका गाल थपथपाते हुए हंटर ने उसे पुकारा। उसके गर्म रुखसार को छूते हंटर के ठंडे हाथों ने उसे कुसमसाने पर मजबूर कर दिया था। पीछे करो, नींद में उसका हाथ अपने चेहरे से हटाती वो बोली थी। अना के हाथ की हरकत से चूड़ियों के जलतरंग ने अनोखा सा साज बर्पा किया था। वह नरम निगाहों से उसे देखता चला गया, जिसके चेहरे पर नींद में भी बेजारियत का भरपूर तासुर दिखाई दे रहा था। तुम नींद का सहारा लेकर मुझसे नहीं बच सकती। आंखें खोलो, मुझे इनमें अपना अक्स देखना है। इस बार नरमी से उसकी रुखसार से हिलाता वो गंभीर आवाज़ में बोला था। कुछ इसकी निगाहों की तपिश थी या मजबूत इंगलियों का इस्तेकाक। वह इसका हाथ चेहरे से हटाती आंखें खोलने पर मजबूर हो गई थी। मंदी मंदी आंखें खोलते हुए उसने मुकाबिल को पहचानने की कोशिश की थी। कौन हो तुम? अपने हाथ में मौजूद इसका हाथ छोड़ती वो ख्वाब दिमागी से पूछ रही थी। गौर से देखो, पहचान जाओगी। उसकी नींद की खुमार से सुर्ख होती आंखों में झांकता वो मुस्कुराते लहजे में बोला तो इस बार अना ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। अगले ही पल वो उसे धक्का देती एक झटके से उठकर बैठी थी। तो तुम यहाँ कैसे आए? अपना दुपट्टा मुट्ठियों में जकड़ती वो कुछ सहमते हुए बोली थी। वैसे ही जैसे पहले आया था, उसके पास से उठता वो लापरवाही से बोला। वो जल्दी से बेड से उतरकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। यहाँ से चले जाओ वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। दुपट्टा अपने शानों पर फैलाती वो दबी दबी सी आवाज़ में गौराई। ऐसा करने से पहले मैं तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दूँगा। पुश से रिवॉल्वर निकाल कर इस पर तानते हुए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। रिवॉल्वर का रुख अपनी जानिब देखकर अना का हल्क खुश्क पड़ने लगा। तो मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे तुम? दिल की तेज़ से तेज़ तर होती धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करती वो नहायत कमज़ोर आवाज़ में बोली। तो अहमद का इस अजीम मुजाहरे पर वो कहकहा लगा कर हंसा था। वही मखसूस खूबसूरत कहकहा। तो तुम डरती नहीं हो? कदम कदम उसकी जानिब बढ़ता वो गैर संजीदगी से बोला। रिवॉल्वर का रुख हनूज उसी की जानिब था जिस वजह से वो अपनी जगह पर कदम जमाए खड़ी थी। इसके सवाल पर अना ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, नहीं डरती। खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरती वो बमुश्किल बोली थी। हाँ, तो वो मुझे नज़र ये आ रहा है कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही। शरारत भरी आंखों से उसकी जानिब देखता वो हनूज गैर संजीदा था। अना को रोने आने लगा। देखो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। एकदम इसके सामने हाथ जोड़ती हुए मुल्तजी हुई थी। चला जाऊँगा तो देखूँगा कैसे? और अगर यूं ही देखता रहा तो किस काफिर का दिल तुम्हारे पास से जाने को चाहेगा? रिवॉल्वर की नाल से उसकी ठोड़ी ऊंची करता वो गंभीर लहजे में बोला। उसकी कुर्बत पर अना का दिल खौफ के मारे ट्रेन की सी रफ्तार से चल पड़ा था, जिसकी धड़कनों की आवाज़ नीम तारीक कमरे में फैले सन्नाटों में शोर मचा रही थी।
शोर हमेशा ही इरिटेट करता है मुझे, लेकिन तुम्हारी धड़कनों का शोर दिलफरेब है। मैं उसे हमेशा सुनते रहना चाहता हूँ। रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर फिरता वो गहरे लहजे में बोला तो उन्होंने बेबस होते हुए उसकी जानिब देखा। मेरा दिल फट जाएगा, मुझ पर रहम करो, गुजारिश करते हुए इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे रोते देखकर वो रिवॉल्वर नीचे करता फ़ौरन उससे दूर हुआ था। वो बेदम सी होती वहीं बैठती चली गई। गहरा सांस लेता वो खुद भी इसके करीब पंजों के बल बैठ गया। तुम इस शादी से इनकार करोगी या ना, समझ आ रही है तुम्हें? उसके चक्के सर को देखता वो इस पर मुकम्मल संजीदगी से बोला था। उसके हुक्म पर अना ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। आंखें पानियों से भरी हुई थी। इससे बेहतर है कि तुम मुझे एक गोली मुझ में उतार ही दो। रिवॉल्वर की नाल अपनी पेशानी पर रखते वो इसकी आंखों में देखती भराई हुई आवाज़ में चीखी थी। अगर बात एक गोली की है तो ये तुम्हारे होने वाले शोहर का मुकद्दर बनेगी। रिवॉल्वर नीचे करता वो सिफाकी से गोया हुआ। अना की आंखों में सुहाग अजवद का बेरया चेहरा घूम गया। वो मेरा होने वाला शोहर नहीं है, वो मेरा शोहर है, पहला और आखिरी शोहर। इसके अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है मिस्टर। हिम्मत मजतमा करती वो बोल पड़ी कि इस मामले में इस लुटेरे पर अपनी कोई कमज़ोरी वाज़े नहीं करना चाहती थी। मैं अपने शोहर की अमानत हूँ, तुम्हें ख़यानत नहीं करने दूंगी। अब अगर इस जुर्म की पादाश में तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे परवाह नहीं है। थूक निकलती वो लरसती हुई आवाज़ में बोली। इस साफ कोरे जवाब पर हंटर ने बेतासुर नज़रों से उसकी जानिब देखा, फिर इस बात में सर हिलाता इसके पास से उठ गया। तुम्हारे जुर्म की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम देखोगी अनहा जुहा का जुद। अब तुम देखोगी कि हंटर गन से निकली एक गोली किसका मुकद्दर बनेगी। उसकी धमकी देता वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। अना ने धुंधली निगाहों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। अना जुहा का जुद, उसकी समातों में अपना मुकम्मल नाम गूंज रहा था। वो जा चुका था। वो जल्दी से उठी और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अना लरसती टांगों से वापस बेड पर आई थी। जिस्म से रूह निकलने को थी। चेहरा तकिया में छुपाते हुए वो रोती चली गई। सुबह की मध्यम रोशनी के संग ही परिंदों के चहचहाने की आवाज़ उसके कमरे की खिड़की से आई थी। लॉन के दरख्तों पर चिड़ियों की गुफ्तगू मध्यम सुरों में जारी थी। वो पेशानी मसलता उठ बैठा। गुज़श्ता रात उसे दूसरे पहर एक ज़रूरी केस के सिलसिले में दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा था। उसकी वापसी फजर से कुछ देर पहले हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी आंख अपने मुकर्ररा वक्त पर खुल गई थी। बालों में हाथ चलाता वो वॉशरूम में जा घुसा। जिस्म कुछ थका थका सा था। फ्रेश होकर वो नीचे चला आया। किचन में आते ही उसकी नज़र अना पर पड़ी थी, जो खिलाफ तवक्का आज अपने मुकर्ररा वक्त से पहले जाग गई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता फ्रिज की तरफ आ गया। फ्रिज से दूध निकालकर वो खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगा, जबकि उसे अक्सर नज़रअंदाज करती वो अपने लिए काफ़ी फेंट रही थी। ज़ुहाक ने चोर नज़रों से उसकी जानिब देखा। गंदमी रंगत में सुर्खाई घुली हुई थी। आंखों के किनारे कुछ सूजे हुए मालूम हो रहे थे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने से मजबूर होता वो नरमी से पूछ बैठा। इसके सवाल पर अना ने एक सुलगती हुई घूरी से नवाजा और बिना जवाब दिए फिर से अपना काम करने लगी। तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम शायद सारी रात सोई नहीं हो। उसके करीब होता वो फिक्रमंदी से बोला तो उन्होंने मग स्लैब पर पटका। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? क्यों मेरा सर खा रहे हो? उसकी तरफ देखती वो उस काट खाने वाले अंदाज में बोली। मैं तो यहाँ आमलेट बनाया हुआ। तुम गलत समझ रही हो। सुहाग ने बड़ी संजीदगी से उसे अपनी सफाई दी थी। इस समझदाराना जवाब पर अना का दिल चाहा अपना सर पीट ले। तुम एक नंबर के गधे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसी बातें तुम जानबूझकर मुझे तपाने के लिए करते हो या वाकई तुम्हारे दिमाग का ऊपर वाला खाना खाली है। बुरी तरह दांत पीसती वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली तो सुहाग ने काफ़ी सादगी से उसकी जानिब देखा। तुम्हारी तबीयत के पूछने में मेरा दिमाग कैसे खाली हो गया? यही तो पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है या ख़राब? आमलेट वाली बात को यकसर गोल करता हुआ बड़ी मासूमियत से बोला था। अना का फिशारे खून बुलंद होने लगा। ठीक का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम यजीद यहाँ पर खड़े रहे ना ज़ुहाक अजवद, तो अगले 5 मिनटों में लाजमन मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अपना गुस्सा काबू करने की नाकाम कोशिश करती वो इस बार चिल्लाई तो वो बेचारा लब भेजता उससे थोड़ा दूर हो गया। मैं बस नाश्ता करने आया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो। सरेंडर करने वाले अंदाज में अपने हाथ झाड़ता वो जल्दी से बोला। यस प्लीज़, यहाँ से चले जाओ। किचन के दरवाजे की तरफ इशारा करती वो हाथ जोड़ते हुए बोली। वो सर हिलाता वहाँ से चला गया। वो उल्टे कदम अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था जब आईना उससे आ टकराई। इधर किधर भाई, अभी तो गए थे ना, अब नाश्ता नहीं किया आपने? आंखें पटपटाती वो बोली थी। जानती थी कि किचन में अना के होते हुए उससे ज़ुहाक के लिए किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं थी।
نہیں، وہ انا کی طبیعت میری وجہ سے خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں واپس آ گیا، تھوڑی دیر بعد کر لوں گا۔ سہاگ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا، ہیں آپ کیا کوئی وائرس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ حیرت کا اظہار کرتی وہ قدرے بلند آواز میں بولی، آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے منہ بسور کر بولی، میں بعد میں کر لوں گا نا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے سہاگ نے ہنستے ہوئے اس سے ٹالنے والے انداز میں کہا، تبھی وہ وہاں وارد ہوئی تھی۔ آگ تو تم دونوں لگا ہی چکے ہو، اب یہ پانی پھینکنے کا دکھاوا مت کرو۔ وہ جو ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی اب سہاگ پر برہم ہو رہی تھی۔ اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو میں ہی ان کی فکر کر رہی تھی۔ آئینہ نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ تم تو چپ ہی رہو نا آئینہ، ورنہ ایک کھاؤ گی مجھ سے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا میرے ساتھ، سب اس چشمش کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ ہنٹر کی گھولن بھی اسی پر انڈیلتی وہ بظاہر آئینہ سے مخاطب تھی۔ تم خواہ غصہ کر رہی ہو، میں تو ایک سمپل بات کر رہا تھا۔ سہاگ نے بھی اسے اپنی دوائی صفائی دینے کی کوشش کی، جو ہمیشہ اس کے سامنے ہٹلر کے روپ میں جلوہ گر رہتی تھی۔ پیر پٹکتی وہ ناک کے نتھنے بھلائے وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا کیا بنے گا بھائی؟ سہاگ کی جانب دیکھتے ہوئے آئینہ نے افسردگی سے پوچھا۔ وہی جواب بنتا ہے۔ اور ہم کے اچانک لقمہ دینے پر آئینہ نے پلٹ کر دیکھا، جو وہاں بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ آئینہ کو سوالیہ نظروں سے اپنی طرح جانب دیکھتا پا کر اس نے کندھے اچکائے۔ درگت بھائی، اور کیا، بچپن سے ان کی درگت بنتی دیکھتا آ رہا ہوں۔ آئندہ بھی کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ انا آپ ہی بھائی کو صحیح ڈرا کر رکھنے والی ہیں۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے ارحم نے سنجیدگی سے کہا تو آئینہ نے تعصب بھرے انداز میں سر ہلایا۔ بکواس ہی کرنا تم ہمیشہ بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہو، اور آئندہ بھی کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ آئینہ نے اس کا جواب اسی کو لوٹاتے ہوئے اسے اتارا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ ارحم کی لاپرواہیاں عروج پر تھیں۔ آپ اس کی بکواس مت سنیں بھائی، ہماری انا آپ ہی اتنی ظالم نہیں ہے۔ آئینہ نے خاموش کھڑے سہاگ کو حوصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ آپ 2 منٹ رکیے، میں اس ارحم کو سیدھا کر کے ابھی آئی، پھر آپ کو مزیدار سا ناشتہ بنا کر دوں گی۔ بازو کونیوں تو چڑھاتی وہ پرجوش سی ہو کر چلائی۔ وہ انسنی کرتا کچن میں جا گھسا۔ نہ میں تمہیں کہاں سے ٹیڑھا نظر آ رہا جو تم مجھے سیدھا کرو گی؟ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگاتا وہ سنجیدگی سے بولا تو انا نے اسے گھورا۔ تم میں اس لمبے سے قد کے علاوہ سیدھا ہے ہی کیا؟ یہ نظریں تمہاری ٹیڑھی ہیں اور زبان توبہ، مجال ہے جو تم کبھی سیدھی بات کر لو۔ کیا ضرورت تھی بھائی کے سامنے بکواس کرنے کی؟ کمر پر ہاتھ ٹکاتی وہ بھرپور لڑاکا انداز میں بولی۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ بھائی انا آپ ہی سے ڈرتے ہیں، اور یہ بات پر بھائی کی انسلٹ بھی کر دیتی ہیں۔ اور ہم نے بھویں اچکاتے ہوئے مکمل اعتماد سے کہا۔ ہاں تو وہ ان کے ہسبینڈ ہے، اگر ان پر غصہ نہیں کریں گے تو کیا تم پر کریں گی؟ اس کا جواز رد کرتی وہ اس پر بگڑی۔ نہیں، یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا ہوں؟ مجھ پر غصہ کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو۔ ٹراؤزر کی جیبوں سے ہاتھ نکالتا وہ اسے جتانے والے لہجے میں بولا۔ بدلے میں وہ ایک پل کو خاموش رہ گئی۔ میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ لیکن میں ابھی تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھی چبا چبا کر بولا۔ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ بہت ہی فضول ہو تم، قسم سے۔ ناک چڑھاتی وہ جھنجھلائے انداز میں بولی تو اس پر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے میں کیا ہوں۔ ارحم نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے پیچھے ہوتی کچن کی جانب بھاگی۔ نری خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی کسی دن سوکھے بانس کو، وہ بلند آواز بڑبڑائی۔ ساتھ تم بھی ہوگی یہ یاد رکھنا۔ ارحم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اتنا برا وقت مجھ پر کبھی نہیں آئے گا، وہ بنا پلٹے چلائی۔ تمہارے وقت کو اپنے مطابق موڑنا مجھے آتا ہے۔ مسکاتی نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ کہاں جا رہے ہو شارب؟ آج مہندی ہے تمہاری اور تمہارے پاؤں گھر میں نہیں ٹک رہا۔ وہ گاڑی کی چابی گھماتا لاؤنج سے گزر رہا تھا جب نورا بیگم نے اسے روک لیا۔ میں لڑکی تھوڑی ہوں جو گھر میں ٹک کر بیٹھوں، 100 کام ہے مجھے۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کی بات ٹال دی۔ سارے انتظامات تو ہو چکے ہیں شارب، اور جو رہ گئے ہیں وہ تمہارے تایا اور چچا تو سنبھال لیں، تم بس اب سیلون چلے جاؤ۔ پیشانی پہ پرکھرے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، پھر یہ سیلون جانے کی ہدایت؟ بات ادھوری چھوڑتے اس نے انہیں چھیڑا تو نمرا بیگم نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ بات گھمانا خوب آتی ہے تمہیں۔ انہوں نے اسے لتاڑا تو وہ ہنس دیا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، اور زحاق سے کہیے گا کہ وہ سیلون چلا جائے گا، میں اسے وہیں مل لوں گا۔ انہیں نرمی سے آگاہ کرتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ نمرا بیگم نے دل ہی دل میں اپنے لاڈلے کی نظر اتاری تھی۔ وہ شمشیر گاہ سے نکل کے سیدھا شہر اپنے فلیٹ آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اسے وہ فاریہ کے پیچھے بھاگتی نظر آئی۔
फारिया की हंसी और मोमल की खिलखिलाहटें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे देखकर मोमल घुटनों पर हाथ रखती रकूस की हालत में झुककर सांस लेने के लिए रुकी। बस मैं थक गई, अब तुझे शारब पकड़ेगा, फूली सांसों समेत वो फारिया से कह रही थी। जी नहीं, गेम हम दोनों खेल रहे हैं, इसमें शारब सर का कोई रोल नहीं है, आप हार चुकी हैं, फारिया ने उसे बावर करवाया। ये क्या हो रहा है यहाँ? बाजू लपेटते शारब ने मुस्कुराते पूछा। मोमल सीधी होकर खड़ी हो गई। भागने के बाद इसके सफाव पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। हम दोनों खेल रहे थे, ये मुझे जल्दी से पकड़ लेती और ख़ुद पकड़ी नहीं जाती। मुझसे अकेले नहीं खेला जाता, तो भी हमारे साथ खेलना। उसके करीब आती मोमल ने उसे जल्दी जल्दी बताया। ओ वेरी बैड मिस फारिया, आपको मोमल को भी मौका देना चाहिए। मोमल की तरफदारी करता वो फारिया को मसनूई संजीदगी से मुखातिब कर रहा था। दिया था, लेकिन मैम हमेशा मिस कर देती हैं, फारिया ने मुस्कुराते हुए बताया। अगर ऐसा है तो कल भी मैं तुम दोनों के साथ खेलूँगा, फिर मोमल कोई चांस मिस नहीं करेगी। मोमल की जानिब देखता वो उसे बावर करवा रहा था। इसकी बात पर मोमल ने इस बात में सर हिलाया। फारिया ने कमरे में छोड़कर खुद बाहर निकल गई। मोमल, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मोमल को अपने साथ लिए बेड की तरफ आता वो नरमी से बोला। मोमल ने कुछ नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्या? उसके लबास्तगी से वाह हुए। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी आंखों में देखता वो उसके नाजुक हाथ थामे बोला। तेरे साथ तो मैं कहीं पर भी चलूँगी, लेकिन मुझे कोई और दोस्त नहीं चाहिए शारब, एक तू ही मेरा दोस्त है। मोमल ने सादगी से जवाब दिया तो वो होले से मुस्कुरा दिया। तो ठीक है, फिर मैं कल सुबह तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, फिर हम मेरे घर चलेंगे। उसकी थोड़ी नरमी से छूते बोला तो अंदरूनी खौफ के बरक्स वो होले से मुस्कुराते हुए सरस बात में हिला गई। एक और बात भी है जो तुम्हें बतानी है, खुद को कंपोज करते शारद ने संजीदगी से कहा। मोमल की आंखों में फिर से सवाल दराया। मैं शादी कर रहा हूँ। उसकी जानिब देखते हुए वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मोमल के चेहरे पर कोई तासुर नहीं हुआ। वो क्या है? इसका सवाल शारद की तवक्को के मुताबिक था। शादी एक ज़िंदगी भर का मायदा होता है। मेरा मतलब है कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। शारद ने अपने तय उसे आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की थी। क्या ये जो शादी होती है, ये ज़रूरी होती है? मोमल ने आंखें पटपटाते हुए कुछ हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, ये हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, शारद ने उसे समझाया। तो फिर तू मुझसे शादी कर लेना, इस तरह हमेशा हम साथ रहेंगे। एक खुशकुन मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती वो पुरजोश अंदाज में बोली। उसकी बात पर शारद के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। शादी उन दोनों लोगों के दरमियान होती है जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। शारद को लगा अब गुफ्तगू पेचीदा होने वाली है। हाँ, तो मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके हाथ थामते वो मुस्कुराती बोली। चेहरे पर इस पर शर्मोहाया जैसा तासुर मफकूद था। शारद मुस्कुरा भी नहीं सका। ऐसे चुप क्या है? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? इसकी खामोशी से घबराती वो रूहान सी होकर बोली। आंखों में वसवसे दर आए थे। शारद ने भंजता निगाहों का रुख बदल गया। बोलो ना शारद, क्या तू मोमी से प्यार नहीं करता? उसे झूंझूरती वो चिल्लाई थी। शारद को अपना आप पुलिस सरात पर झूलता हुआ महसूस हुआ।